Ayurvedic Medical College and Hospital welcomes each and everyone to the third day of Jnana Prabodhini Saptah. Today, we have our respected speaker, Dr. Kiran Kalyankar sir. He completed his BMS MD Ayurveda and is a consulting Ayurvedic physician. He holds a diploma in Yoga and Ayurveda. He is a director and owner of Shri Vishwa Ganesh Ayurveda and Panchakarma Clinic, Kharghar, and also owns Vayu Cancer Care Center in Kharghar. He is the founder and president of Ayurveda Gurukul. Sir received a national award in 2018 for essay competition held by Ministry of Ayush, New Delhi, and also for paper presentations on cancer at National Conference Vishwa Vyakhyan Mala. Along with this first national prize in COVID-19 in Ayurveda in 2020 by Vaidyanraj Datar Panchabhautik Sanshodhan Kendra Sangli. Another milestone in his achievement is that Sir has published 12 research papers on cancer in national and international conferences till date. It's my honor to welcome such eminent speaker. Over to you, sir. Thank you very much, Shivani, for beautiful introduction. Good evening, all the delegates, all the teachers, and all students for this today's our session of Ayurvedic principles of cancer and its treatment. I will share my screen with you, and I think that I am audible to every one of you. So we will start with our session of Ayurvedic principles of cancer and its case studies. Friends, cancer is a major public health problem worldwide. It is a second leading cause of death. Complications and vulnerability is seen on every step of treatment of cancer, and it becomes very tough for treatment. Ayurveda helps significantly to reduce these complications and vulnerability. Today, we are going to learn how to treat cancer successfully with the help of Ayurveda. We know that Ayurveda is an eternal science where assertive knowledge is written in facts. We need to find and understand these facts for better judgment of cancer and its Ayurvedic treatment. First of all, we will see what is Siddhanta. So, परीक्षकैः बहुविधं परीक्ष्य हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः. परीक्षकों ने जब किसी भी हेतु का बहुविध परीक्षण किया होता है और फिर अंतिम निर्णय की स्थापना की जाती है तो उसे सिद्धांत कहा जाता है. इसके चार मुख्य प्रकार है: सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम. आज मैं जो आपसे चीजें शेयर करने वाला हूँ, ये मेरा पिछले 8 से 9 साल का कैंसर के ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस है, और ये सभी चीजों को मैं अभ्युपगम सिद्धांत के अनुसार आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. व्हाट इज अभ्युपगम सिद्धांत? जस्ट गिव मी अ सेकंड. Hello, sorry for the inconvenience, friends. I got one emergency call. So we were talking about अभ्युपगम सिद्धांत. तो ये जो मैंने 8 से 9 सालों के पिछले एक्सपीरियंस से जो अनुभव हासिल किया है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ. एंड ये हमारे क्लिनिक पे हमने जो पेशेंट्स पे ट्रीटमेंट किया उसके बारे में जो हमने सोच विचार किया था वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ.
तो इसलिए हम इसे अभ्युपगम सिद्धांत के अनुसार आगे का जो अपना सेशन है वो देखना चाहेंगे। सो ये ब्रेस्ट कैंसर की एक पेशेंट है। द पेशेंट केम टू अस विथ नॉन हीलिंग पोस्ट ऑपरेटिव वुंड। पेशेंट ने केमोथेरेपी वगैरह सब ले लिया था, लेकिन उनका जो वुंड था वो हील नहीं हो रहा था। उसके लिए उन्होंने ग्राफ्टिंग का भी सहारा लिया था, बट वो अच्छे से कुछ हुआ नहीं। और उतने अच्छे से ये जख्म जो था वो लगभग 1 साल से हील नहीं हो रहा था। तो जब हमने इनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया था, तो विद इन 4 मंथ्स ये वुंड जो था वो पूरे तरीके से हील हो गया। ये एक और कैंसर के पेशेंट है जिनको स्टेज 4 का माउथ कैंसर था। आप देख सकते हैं कि जो वुंड है वो कितना बड़ा है। इट इज अ कैंसरस वुंड। इनको जब हमने ट्रीटमेंट दिया था तो लगभग 9 महीनों के अंतराल में ये जो वुंड था वो पूरे तरीके से हील होके आया। उनका कैंसर भी काफी हद तक कम हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कॉम्प्लिकेशंस के वजह से कुछ 3 साढ़े 3 साल बाद ये रुग्ण की डेथ हो गई थी। ये एक और पेशेंट है, केवल 17 साल की ये स्त्री रुग्णा जब क्लिनिक पे आई थी ट्रीटमेंट के लिए, तो इनको स्टेज 4 ग्रेड 3 का लंग कैंसर जो था वो डिटेक्ट हुआ था। इनके पिताजी जो थे वो क्रोनिक स्मोकर थे, और मे भी बचपन से ही वो पैसिव स्मोकिंग का शिकार हो गई थी। एट द एज ऑफ 17 ओनली शी वाज डिटेक्टेड विथ स्टेज 4 लंग कैंसर। एलोपैथी का तो कुछ भी इसमें ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, लेकिन जब हमने इनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया था, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से लगभग 15 किलो तक का भार वृद्धि, वेट गेन इस रुग्ण में हमने देखा है। तो बल, वर्ण, प्रभा, कांति, ये सभी चीजों में कितना बदलाव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से होता है, ये आप इस रुग्ण में देख सकते हैं। ये एक और रुग्ण था, करीबन 75 इयर्स की ये ओल्ड लेडी जब हमारे पास आई थी क्लिनिक पे, तो माउथ कैंसर स्टेज 4 का इनको डिटेक्ट हुआ था। इनको भी जब हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया था, ये सभी पेशेंट लगभग सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही ले रहे थे। इनको किसी भी तरीके का एलोपैथी का कोई भी मॉडर्न साइंस का इंटरवेंशन नहीं था ट्रीटमेंट का। तो इनको जब हमने ट्रीटमेंट दिया था तो लगभग 3 से 4 महीनों के भीतर ही उनका कैंसर काफी हद तक कम हो गया था, और वो काफी हद तक प्रकृति में उनके सुधार भी आया था। ये एक लिम्फोएंजियोमा के मेल पेशेंट है। इनके आंख के पीछे के तरफ लिम्फोएंजियोमा, ये एक ट्यूमर या कैंसर था। इट इज अ पार्ट ऑफ टाइप ऑफ बेनाइन ट्यूमर, लेकिन ब्रेन में है, आंख के पीछे है, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट एंड ट्रीट। तो ये रुग्ण ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लगभग 4 से 5 महीने का होने के बाद इनका जो लिम्फोएंजियोमा कैंसर था वो काफी हद तक लगभग 90% तक कम हो गया था। तो इन सभी रुग्णों में हमने ट्रीटमेंट कैसे किया था, इन सभी रुग्णों में हमने कौन से आयुर्वेदीय सिद्धांतों का इस्तेमाल किया था, और हमने कैंसर के लिए आयुर्वेदिक सिद्धांत किस तरीके से सोचे थे, इन सब का हमें आज के अपने इस सेशन में डिस्कशन करना है। बिफोर proceeding further, I will just touch some statistic related to cancer. So, मॉडर्न थेराप्यूटिक आज इतना एडवांस साइंस हो गया है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी ऐसे कहा जाता है, फिर भी देर आर अराउंड 25 लाख न्यू फाइंडिंग्स ऑफ कैंसर इन इंडिया ओनली. देर आर अराउंड 7 लाख डेथ्स ईच ईयर. अगर हम cancer-india.org इस वेबसाइट पे अगर ऑफिशियल डेटा देखते हैं, तो वो कहते हैं कि देयर इज ओनली 2.4% ऑफ सर्वाइवल रेट फॉर 5 years आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर. इन शॉर्ट, मॉडर्न थेराप्यूटिक्स और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडिंग 2.4% survival rate for 5 years. In simple words, only 2 or 3 out of 100 victims of cancer are living more than 5 years post diagnosis of cancer. Thousands of crores of rupees
is being spent on cancer research, whereas the output is not much promising. Now, just this is a finding, or this is a cartoon which I came across while preparing this our PPT. Take it on lighter note. One patient is there and he is taking chemotherapy, and the nurse besides him is talking with him. What she is saying, the bad news is chemo can kill you before the cancer does, and the good news is the medical bills and health insurance can kill you before the chemo. So the situation is not very good. So treatment of cancer as per conventional treatment is like climbing this ladder of swords. When we climb this ladder, on every step we lose a part of ourselves. Sometimes a lot of blood loss is there. We lose our willpower. A patient loses his dignity. A patient loses his strength. But when we add Ayurveda in treatment of cancer, we are simply flipping the ladder. And that's why one should use Ayurvedic treatment in treatment of cancer. So, what is role of Ayurveda in cancer? We can treat cancer as well as its complication. We can alleviate adverse effects of chemo and radiation. We can prevent cancer and its recurrence. We can increase lifespan of patient. We can increase survivorship of patient. We can do palliative treatment. All these things can be performed with help of Ayurveda. How we are going to intervene with Ayurveda in cancer? We will be doing Prakruti Sthapan Chikitsa. We are going to do Vyadhi Pratyanik Chikitsa. We can perform Rasayan Chikitsa. We can suggest yoga and pranayam to patients. Always remember that holistic approach of Ayurveda is important in treating cancer. So these are basically types of cancer. We know all these details, benign and malignant. I will not go into much details of this, how malignancy is formed. So mutation occurs in cancer, in cells of our body, dysplasia occurs, and after it, the second and third mutation, then a patient or that cell is converted into cancerous or malignant cell. And after then, angiogenesis is there, and metastasis can be also found at the site in the patient. So basically, what is cancer? Cancer is an abnormal growth of cells which tend to proliferate in an uncontrolled way and in some cases to metastasize. Always remember that tumor of cancer is not a disease, but tendency to form tumor is the main disease. So the basic principle of cancer, basic Ayurvedic description of cancer, we can say it. We have learned Vata dosha has a karma of vibhajan. Vayuhu vibhajati. We have learned that division of cells, it is a Vata dosh karma, whereas production of cells is a Shukra dhatu karma. Now, Sarvadehik Shukra is important for Navanirmiti. जब इन दोनों भाव पदार्थों की दृष्टि होती है, तब कैंसर जैसे घातक बीमारियों का निर्माण होता है. कैंसर में अगर हम दोष दुष्य सम्मूर्छना देखते हैं, तो वो क्या होती है? कैंसर ये प्रधानतः वात और पित्त दोष तथा कफ दोष का सन्निपातिक व्याधि है. इसमें वात दोष की प्रधानतः दृष्टि होती है, साथ में पित्त और कफ का अनुबंध होता है. कैंसर में अगर हम धातुओं के सिद्धांत पर ध्यान दें, कौन से धातुओं की दृष्टि है ये अगर देखें, तो इसमें शुक्र धातु की प्रधान दृष्टि पाई जाती है. अस्थि धातु, मांस धातु और रक्त धातु की भी दृष्टि साथ में होती है. अगर हम कैंसर की गांठ को हाथ लगा के देखते हैं, तो ये अत्यंत कठिन होती है. तो जब अस्थि धातु का विमार्ग गमन
किसी भी अन्य धातु में होता है तो उससे ये दृष्टि आती है, और इसीलिए हम शुक्र और अस्थि धातु की प्रमुख प्रमुख चिकित्सा जो है वो कैंसर के सभी पेशेंट्स में करते हैं। कैंसर ये खुद मल स्वरूप व्याधि है। ये शरीर को मलिनीकरणात् मलः, शरीर को मलिनीकरण इस व्याधि से होता है। तो इसे हम मलिनीकरणात् मलः यानी खुद से मल स्वरूप का ही व्याधि है, ऐसे हम कह सकते हैं। कैंसर ये वर्ड कहीं आयुर्वेद में आया है क्या? बट ऑब्वियस नहीं आया हुआ। But a lot of similar Vyadhis which shows Lakshan Samuchaya of cancer can be observed in Ayurveda. For example, breast cancer, and it can be correlated with Agantu Stanarog, Stanavidradhi, Asadhyavran. Lungs cancer can be considered as Rajayakshma, Urakshat, Urdhva Raktapitta, Vidradhi. Cervical cancer can be called as Arbuda, Granthi, Yoni Vapada. Leukemia can be correlated, or the Lakshan Samuchay can be found in Pandu, Raktapitta, Rajayakshma. Liver cancer can be correlated with Yakrutudar, Gulma, Vidradhi, Abhyantar Arbud. A lot of similarities can be observed. Important lesson to be learned here is to think every patient as a separate individual. Acharya Charak has said that Purusham Purusham Viksha Sadneyo Vishaguttamaha. हर व्यक्ति जो है वो भिन्न है, और इसका ज्ञान जिस वैद्य को होता है वह उत्तम भिषक कहलाता है। इन माय पर्सनल ओपिनियन, कैंसर शुड नॉट बी ट्रीटेड एज कैंसर बाय अस. फ्रॉम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, it must be decided on the basis of शारीर परीक्षण. वैद्य should perform त्रिविध परीक्षण, अष्टविध परीक्षण, दशविध परीक्षण of patients, and one should find all these lakshan samuchaya and dosha dushya samurchana with the help of Shat Kriya Kal, and classical Ayurvedic diagnosis should be done. Let the diagnosis be Pandu or Kamla or Yakshma from our side, and as per this Nidan, Chikitsa should be performed respectively to obtain the optimum results. Now, what happens when we are unable to do Ayurvedic Nidan? So, Acharya Charak had already answered our query. Acharya Charak says that Vikara Nama Kushalo na jivyat kadachana नहीं सर्व विकाराणाम नामतोस्ति ध्रुवास्थिति. विकार को नाम देने में अगर कठिनाई भी होती है तो चिकित्सक को लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है. हम दोष धातु और मल की विकृति का ज्ञान लेके उनको समान अवस्था प्राप्त कर दे सकते हैं और किसी भी व्याधि की चिकित्सा जो है वो कर सकते हैं. तो जब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं तो रुग्ण के असेसमेंट क्राइटेरियाज भी हमें अच्छे से मालूम होने चाहिए. चिकित्सा देने के बाद पेशेंट में कौन से चीजों में आराम आ रहा है, कौन से चीजों में तकलीफ बढ़ रही है, हाउ इज द प्रोग्नोसिस गोइंग, तो इसके लिए असेसमेंट क्राइटेरियाज बहुत ही जरूरी है. तो इसमें हमने कुछ आयुर्वेदिक क्राइटेरियाज यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और इसी के साथ में कुछ मॉडर्न के भी क्राइटेरियाज है जिनमें कॉमन टॉक्सिसिटी क्राइटेरिया या कार्नोफ्स्की स्कोर आता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चनएयर इन कैंसर 30 जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन्होंने तैयार किया हुआ है, ये आता है. तो ये सभी क्राइटेरिया हमें हर फॉलोअप में एसेस करने हैं. इसी के साथ में जो पीरियोडिकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जैसे कि हीमोग्राम, अलग अलग ट्यूमर मार्कर टेस्ट होते हैं. ब्रेस्ट कैंसर में जैसे कि CA 15.3 किया जाता है, यूट्रस या फिर ओवरियन कैंसर में CA 125 किया जाता है. जो लंग्स कैंसर होता है उसमें CEA कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन किया जाता है, या फिर कोलोन कैंसर, पैंक्रियास कैंसर, लिवर कैंसर में CA 19.9 किया जाता है. तो ये सभी ट्यूमर मार्कर्स जो है ये हमें मालूम होने चाहिए और इसका पीरियोडिकल असेसमेंट करना चाहिए. पेट CT स्कैन, MRI स्कैन या CT स्कैन ये करने चाहिए. USG मैमोग्राफीज जो है वो पीरियोडिकल हमें करने चाहिए. तो हम ज्यादा टाइम दौड़ाएंगे नहीं, हम केस स्टडीज के पास आ रहे हैं. तो the goal is to turn data into information and information into insight. जब हमारे पास बहुत अच्छे से डेटा
होता है तो उससे हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। और जब बहुत सारी जानकारी या इंफॉर्मेशन आती है तो इससे हमें कुछ इंसाइट्स मिलते हैं, कुछ हमारे प्रिंसिपल्स या कुछ सेट ऑफ मेडिसिन ये जो है ये फाइनलाइज होते जाते हैं। इंसाइट्स से हमें काफी अच्छा नॉलेज मिलता है और नॉलेज से विस्डम मिलता है। तो ये विस्डम ही कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जरूरी होता है। आचार्य चरक भी कहते हैं कि शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धि ही आत्मना ताभ्याम विषक सुयुक्ताभ्याम चिकित्सन्ना पराध्यति। अर्थात आयुर्वेदीय शास्त्र ये प्रकाश करने के लिए ज्योति है और अपनी बुद्धि ये नेत्र है, और इन दोनों को मिलाकर जब हम प्रयोग करते हैं तो चिकित्सक भूल नहीं करता और चिकित्सा में त्रुटि नहीं रहती। तो ये विस्डम बहुत जरूरी होता है। आवृत्तवाद सिद्धांत, ये आयुर्वेद में बताया हुआ एक बहुत ही रोचक सिद्धांत है। आवृत्त की अगर हम व्याख्या देखते हैं तो अभिसर्पता बलवता दोषेण अभिभूतो दुर्बलो दोषः प्रत्यावृतः। तो जब हम इसे अगर आसान भाषा में समझने को जाते हैं तो बलवान दोष द्वारा जब निर्बल भाव पदार्थों को व्याप्त किया जाता है तो इसे अवरुत्त कहा जाता है। हम सबको अवरुत्त या फिर हमें वात का महत्व ज्ञात है। संग्रहकार वात महात्म्य वर्णन करते वक्त कहते हैं कि सह विश्वकर्मा विश्वात्मा विश्वरूपः प्रजापति सृष्टा धाता विभुर्विष्णु संहर्ता मृत्यु अंतकः। अर्थात वायु जब समान स्वरूप में रहता है, जब सम्यक रहता है और इसका जब हमें प्राकृत रखने के लिए हमेशा पालन करते हैं तो वो हमें सेहत या फायदेमंद होता है, किसी भी तरीके से व्याधियों की उत्पत्ति नहीं करने होती। लेकिन अगर ये विकृत हो जाता है तो ये जरूर मृत्यु प्रदान कर सकता है। तो अवृत्तवात ये एक ऐसा ही कंसेप्ट है जिसमें मृत्यु भी आ सकता है। हम सब ने लोकोयम पुरुष संहिता सिद्धांत पढ़ा हुआ है। जे जे पिंडी ते ते ब्रह्मांडी असं आपण म्हणतो। जर अगर सृष्टि में बड़े बड़े टॉर्नेडोज तूफान जो आते हैं तो वैसे ही शरीर में भी आ सकते हैं। अगर अवृत्तवाद को हम देखेंगे तो मूर्त और अमूर्त आवरण ये इसी तरीके का हो सकता है। जब इसमें वायु से किसी भी अन्य भाव पदार्थों को आवृत्त किया जाता है और कभी कभी अमूर्त का अमूर्त से आवरण, यानी कि वायु के पांचों प्रकार एक दूसरे को आवरण करते हैं, तो इसमें भी काफी हद तक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आ सकते हैं। You can imagine these kind of destructive forces inside our body. How much fatal and life-threatening conditions may occur due to this. अगर हम आगे जाते हैं तो अष्टांग हृदयकार कहते हैं कि आवृत्तवात ये अर्बुदकारी हो सकता है। इससे त्रिदोषजन्य आवृत्त से अर्बुद की उत्पत्ति हो सकती है। Most of our scholars agree that अर्बुद is type of malignant tumor as per Ayurvedic text. चरकाचार्य ने अपने एक श्लोक में वर्णन किया है कि प्राणवायु की विशेष रक्षा करनी चाहिए। इसके आश्रय से ही जीवन है और इसके पीड़न से ही आयुष्य की हानि होती है। कैंसर जैसे अवरोध उत्पन्न करने वाले व्याधि में यह अवरुतत्व अगर एक वत्सर, एक साल तक अगर बना रहता है तो प्रयत्न करने पर भी ये दुस्साध्य होता है और अनुपक्रम यानी इस पर कोई भी उपक्रम किया नहीं जा सकता। इसे असाध्य अवस्था प्राप्त होती है। चरकाचार्य आगे ये भी कहते हैं कि अवृत्तवात में कठिन विवर्ण पीड़काओं की उत्पत्ति शोफ का निर्माण होता है। आचार्य सुश्रुत भी यह कहते हैं कि अवृत्तवात में रुजावंत घन शीत शोफ उत्पन्न होता है। तो ये सब आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये हमारा पहला केस स्टडी का बैकग्राउंड था। जो हम पहला केस अभी देखने वाले हैं तो ये एक स्त्री रुग्णा थी। ये स्त्री रुग्णा जब हमारे क्लिनिक में आई थी तो इनको
राइट साइड के ब्रेस्ट में लंप लग रहा था, स्टोनी हार्ड लंप था. देयर वाज पेन एंड डिस्चार्ज थ्रू राइट ब्रेस्ट. देयर वाज अ retracted nipple and asymmetry was noted. Tingling sensation and numbness all over the body were the another symptoms. इसी रुग्ण को 2002 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था. इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा ऑफ ग्रेड 3 ऐसा इसका डायग्नोसिस था. इस रुग्ण को लंपेक्टोमी जो जुलाई 2002 में किया था, केमोथेरेपी जो दिसंबर 2002 तक हुई थी, और रेडिएशन जो 2002-2003 के दौरान किया हुआ था. तो उसके लगभग 13-14 साल बाद में कैंसर की पुनरुद्भव जो है वो हो गया था. तो पेशेंट 2012 से हमसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कुछ सोरासिस और अन्य कारणों के लिए ले रहे थे. तो जैसे ही इन्होंने ये लंप लगना चालू हो गया था, तो हमारे साथ बात किया था. जब हमने इनके इन्वेस्टिगेशंस कराए थे ये दिसंबर 2016 में, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हाइपर मेटाबॉलिक एनहांसिंग सॉफ्ट लीजन, soft tissue in the right breast, and perilesional satellite nodules are new findings and appear suspicious for disease recurrence. तो पेट स्कैन करने के बाद ये हमें कंफर्म हो गया था कि इस रुग्ण में कैंसर का पुनरुद्भव जो था वो हो गया है. इस रुग्ण का निदान हमने मांसावृत्त वात ऐसे किया था. तो मांसावृत्त वात में हमने अगर चिकित्सा सूत्र देखते हैं तो स्वेदाभ्यंग रसः क्षीरम स्नेहो मांसावृते हितम. पेशेंट ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था और साथ में ही कन्वेंशनल ट्रीटमेंट यानी कि केमोथेरेपी और सर्जरी भी किया था. राइट फ्रॉम बिगिनिंग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम इनको दे रहे थे, शुरुआत से ही चल रहा था. आमपाचक वटी, शंखवटी, आरोग्यवर्धिनी जैसे दीपन पाचन कल्प, ताप्यादि लोह, खरजूरादि मंथ जैसे संतर्पण कल्प, नारसिंह रसायन, मोक्टिक पिष्टी, ये रसायन कल्पों की योजना हमने की थी. क्षुधा बढ़ाने हेतु आमपाचकवटी, शंखवटी का बहुत अच्छे से फायदा होता है. केमो के शरीर पर उष्णता और पित्त की वृद्धि कम कराने हेतु हमने चंदनासव जैसे शीतकल्पों की योजना की थी. रसायन हेतु हमने नारसीय रसायन तथा शीतवीर्य और पाचन करने वाले मोक्तिक पिष्टी का उपयोग भी किया था. केमो से जो शरीर दाह, आमाशय स्थित अंतस त्वचा का दाह उत्पन्न होता, पाक होता है, तो जो मोक्तिक के शीतवीर्य से कम होता है. कन्वेंशनल ट्रीटमेंट यानी केमो और साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलने से रुग्ण में शीघ्र ही ये व्याधि जो था वो नष्ट हो गया था. रुग्ण के जो लक्षण थे वो लगभग 1 से 3 माह के भीतर पूरे तरीके से बंद हो गए थे. और ये जो हमने 1 साल बाद का पेट सीटी स्कैन कराया था, तो इसमें आप फाइंडिंग देख सकते हैं, नो मेटाबॉलिकली एक्टिव डिसीज इन द राइट चेस्ट वॉल और एल्सवेयर इन द बॉडी. Compared to PET CT scan done in 2016, no new lesions are seen. तो इसमें तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी था, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट भी था. तो इसमें नया क्या था? तो what we achieved in this case is that this patient has advised to go for 6 cycles of chemotherapy. But due to Ayurvedic treatment, we succeeded in reducing the dose of conventional treatment. Only 4 cycles of chemotherapy were performed. Second achievement in this case patient is that the patient was working in a bank, and during the treatment span of whole 1 year, she doesn't take a single holiday for treatment due to weakness, fatigue, or due to any clinical or pathological findings. Yes, the patient is used to go to office and then coming to hospital, and even with so much casual for chemo, the routine was continued till her retirement in 2018. Patient is fit and fine even in today's date, at today's date. So this is our second case. A 60 years female patient which came to us with adenocarcinoma of cervix. अगर इस रुग्ण के हम हिस्ट्री देखते हैं तो वो बहुत ही रोचक है.
इस रुग्ण को नवंबर 2015 में सीए सर्विक्स डिटेक्ट हुआ था। तो जैसे ही ये कैंसर डिटेक्ट हुआ, उन्होंने तुरंत सर्जरी करवा लिया था। तो जो कमांडो सर्जरी या पैन हिस्टेरेक्टोमी जिसे कहते हैं, वर्देम्स हिस्टेरेक्टोमी ऐसा भी इसका एक नाम है, तो ये दिसंबर 2015 में इन्होंने करवा लिया था। उसके बाद जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में केमोथेरेपी किया जाता है, तो इन्होंने केमोथेरेपी का एक साइकिल लिया था, लेकिन केमोथेरेपी के एक साइकिल के दौरान ही इस रुग्ण को इतना परेशानी और तकलीफ सहना पड़ा था कि इन्होंने बाद में मेरा कुछ भी हो जाए, मैं ये केमोथेरेपी नहीं लेने वाली, ऐसा करके केमोथेरेपी रिफ्यूज किया था। इनके जो लड़का था, उसका कुछ 4-5 महीनों बाद शादी था। तो रुग्ण का एक ही कहना था कि इसके शादी तक मैं अच्छी रहती हूँ, तो बाद में मेरा कुछ भी होए, मुझे कोई मतलब उसमें लेना देना नहीं है। अगर ये केमोथेरेपी में लेती हूँ तो मैं 4-5 महीना भी जिंदा नहीं रहूंगी। इतना ज्यादा तकलीफ इस रुग्ण ने उस वक्त सह लिया था। तो लगभग केमोथेरेपी जो जनवरी 2016 में हुआ था, उसके 2 महीने बाद में मार्च 2016 में ये रुग्ण हमारे पास आया था। किसी हमारे दूसरे पेशेंट ने इनको रेफरेंस दिया था। जब पेशेंट क्लिनिक में आया था, तो इनको पेन इन एब्डोमेन, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन ये लक्षण थे। वीकनेस बहुत ज्यादा था, थकावट बहुत ज्यादा थी, सभी जॉइंट्स में पेन था। इनके हेपेटिक रीजन में मेटास्टासिस कैंसर का हुआ था, साथ में ही असाइटिस और बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन भी था। ये रुग्ण का हिस्टोपैथोलॉजी का रिपोर्ट है, और साथ ही में ये फरवरी 2016 में जो पेट सीटी स्कैन किया था, आप लास्ट में इसके इंप्रेशन में देख सकते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव सिरोजल डिपॉजिट्स इन right infrahepatic region suspicious for metastasis, ascites and bilateral pleural effusion is noted. Hypermetabolic D3 vertebral metabolism favors some marrow disease and needs MRI correlation. अर्थात इनके D3 वर्टिब्रा में भी कैंसर का मेटास्टासिस हुआ था, लिवर में तो था ही, साथ ही में असाइटिस और बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन से ये भी पता होता है कि लंग्स में भी ये कैंसर आने की शुरुआत हो गई थी। इनको जो हमने ट्रीटमेंट दिया था, तो ये सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया था, इनमें कोई भी एलोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। अगर शुरुआत का सर्जरी और एक केमोथेरेपी का साइकिल देखा जाए, तो केमोथेरेपी का साइकिल जनवरी में था, फिर पेट स्कैन फरवरी में किया है, और उस वक्त के ये फाइंडिंग्स थे। तो इनमें हमने दीपन हेतु आमपाचकवटी, शंखवटी, संतर्पण हेतु ताप्यादि लोह, खरजूर आदि मंत्र दिया था। ताप्यादि लोह यह रुग्ण का एक चिकित्सा हेतु के लिए प्रधान कल्प था। पांडु चिकित्सा में यह वर्णित कल्प रक्तक्षय, ट्यूमर, स्वेलिंग ऑल ओवर द बॉडी इन लक्षणों में उपयुक्त है। ताप्यादि लोह में यकृत शक्तिवर्धक, पाचक और अग्नि प्रदीपक, चित्रक, पिप्पली, मरीच आदि द्रव्य है। यकृत में जब अर्बुद उत्पन्न होता है, तो इसमें ताप्यादि लोह बहुत ही प्रभावशाली काम करता है। कैंसर या किसी भी व्याधि का जब भय उत्पन्न होता है, तो भय से हृदय की अभिसरण प्रक्रिया विचलित होती है, एबनॉर्मल हो जाती है। तो ऐसे में हृदय आदि इंद्रियों को सशक्त करने हेतु ताप्यादि का उपयोग किया जाता है। स्त्री रुग्णों में पांडुता, अशक्तता, किसी भी बात की बात करने की इच्छा न होना, हृदय स्पंदन बढ़ना, पाल्पिटेशन होना, हृदय में घबराहट होना, उत्साह का अभाव, इन सब रुग्णों के लक्षणों को ताप्यादि लोह ने नष्ट कर दिया। शरीर के किसी भी क्षेत्र में जब कफ, वात और रक्त की विकृति होती है, तो वहां के दोषों का विमलापन करने का कार्य और वहां का रक्त प्रसादन करने का कार्य जरूरी होता है, और ये ताप्यादि लोह यह गुण दिखाता है। ताप्यादि में अंतर्भूत शिलाजीत, रौप्य, सुवर्णमाक्षिक के कारण यह गुण दिखते हैं, और इसी से कैंसर की ग्रंथियों का विमलापन भी होता है। इसी रुग्ण में हमने त्रिवंग भस्म का भी उपयोग रसायन हेतु स्वरूप किया था। Extensive use of Trivanga Bhasma is performed from beginning in this patient. Trivanga is one of the best Vrusha, Vajikar and Rasayan medicine. Now, previously, we have seen that the relation between cancer and Vikrut Shukra Dhatu.
This is a case of CS cervix, which is the अधिष्ठान of शुक्र धातु. तो इसीलिए त्रिवंग भस्म से काफी अच्छा फायदा इस रुग्ण में हमने देखा था. इसी के साथ में सुवर्ण भस्म, रजत भस्म, सहस्त्रपुटी अभ्रक का भी हमने इस रुग्ण में इस्तेमाल किया था. सुवर्ण भस्म के अगर हम सिद्धांत देखते हैं तो इसे सोमत धातु समृद्धिताम ऐसा रस कामधेनुकार ने कहा हुआ है. तो सोम यानी सुवर्ण से समृद्धि की अपेक्षा रखनी है. तो जब हम आयुर्वेद की बात कहते हैं, जब हम अपने शरीर शास्त्र की बात कहते हैं, तो शरीर की समृद्धि यानी क्या है? शरीर के रस, रक्त, मांस, शुक्र, ओज इत्यादि धातुओं की समृद्धि यहाँ पे अपेक्षित है. तो रसेंद्र चिंतामणिकार आगे जाके ये भी कहते हैं कि सुवर्ण ये त्रिदोषग्न है, विषग्न है, कृत्रिम विषर है. तो गुटखा, टोबैको, अल्कोहल, टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, पेस्टिसाइड्स, फूड कलर्स, हाइब्रिड ग्रेन, इन सबके सेवन से जो गर्भविष या दूषी विषों की संप्राप्ति शरीर में उत्पन्न होती है, और इन संप्राप्तियों के कारण हेतु जब कैंसर का निर्माण होता है, ऐसे अवस्थाओं में सुवर्ण भस्म का उपयोग काफी अच्छे से होता है. सर्वौषधि प्रयोगैः व्याधयो न विनर्जितः कर्मभिः पंचभिश्चापि सुवर्ण तेषु योजयेत्. सर्व औषधियों के प्रयोग से भी जो व्याधि नष्ट नहीं होते हैं, पंचकर्म से भी जो व्याधि नष्ट नहीं होते हैं, तो उन पर सुवर्ण का प्रयोग करना चाहिए. सुवर्ण का गामित्व, वात पित्त दोष, रसरक्त, मांस शुक्र धातु, हृदय, वात वाहिन्या, रक्त वाहिन्या, नेत्र, श्वसनेन्द्रिय, लघुआंत्र, बृहदांत्र, अंडकोश, मनोदेश आदि काफी सारे स्थानों पर होता है. इसी रुग्ण में हमने कैंसर को नष्ट करने हेतु रजत भस्म की भी योजना की थी. रजत भस्म का अगर हम फलश्रुति देखते हैं तो इसमें परम लेखनकम च रूप्यम ऐसा आया है. लेखन करने वाला काफी अच्छा उत्कृष्ट कल्प है. जब किसी भी व्याधि में पुयोत्पत्ति या कोथ उत्पन्न होता है तो ऐसे में रजत भस्म का काफी अच्छा उपयोग किया जाता है. पेशेंट्स ऑफ माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, cervix cancer, when non-healing wounds are present, a lot of pus, foul smell, necrotic tissue can be found. A lot of inflammation is observed. Cancer shows gangrenous pathology in some cases. The body organs start to decompose. Sometimes maggots formation occurs in mouth, in cervix, in breast. So patient complains of fever, and even non-steroidal anti-inflammatory drugs act for very short time in these patients. In these cases, Rajat Bhasma inhibits this samprapti and initiates the production of Prakrut Dosha Dhatu, and that respective organ is preserved. रस रक्त धातुअग्नि बढ़ाने हेतु रुग्ण का धातु पोषण प्रक्रिया सुधारने हेतु हमने रसयोग और रक्तयोग की योजना की थी. पटोल, कटुद, रोहिण्यादि कषाय ये कांगला तथा यकृत विकारों की एक उत्तम औषधि है. यकृत से पित्त का प्राकृत स्राव उत्पन्न होना ये पटोल, कटु, रोहिण्यादि से उत्पन्न होता है. तो ये सब दवाइयों की योजना लगभग 6 से 8 माह तक चली थी. इस रुग्ण का जो पेट था वो धीरे धीरे अंदर जाना चालू हो गया था. एक भी बार टैपिंग नहीं किया था, एक भी बार प्लूरल इफ्यूजन के लिए टैपिंग नहीं किया था. तो सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों से इन्होंने काफी अच्छा रुग्ण में फर्क दिखना चालू हो गया था. घूमना फिरना चालू हो गया था रुग्ण का. सभी जो लक्षण थे वो 1 महीने के अंदर ही कम हो गए थे. उनका जो लड़के का शादी था वो उन्होंने काफी एंजॉय करके अटेंड किया था. तो जब लगभग 1 साल बाद में हमने इस रुग्ण का फिर से पेट स्कैन किया था, तो पेट स्कैन के वक्त वहां के डॉक्टर ने मेंशन किया था कि द पेशेंट वाज ऑन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सिंस देन. तो जब भी अगर कुछ बुरा होता है तो हाँ, तो पेशेंट तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा था, तो इसलिए कैंसर बढ़ गया, ऐसा बोलते हैं काफी सारे लोग. लेकिन इस रुग्ण में अगर आप देखेंगे तो कंपेयर टू द सीटी स्कैन डन इन 2017, there is a significant decrease in the mesenteric and omental stranding, complete regression of abdominal adenopathy and ascites,
No new lesions are seen and suggested close follow-up. तो जो इनके D3 वर्टिब्रा में मेटास्टासिस था, जो लीवर में मेटास्टासिस था, जो असाइटिस था, जो प्लूरल इफ्यूजन था, वो पूरी तरीके से रिवर्स हो गया था। सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का इस रुग्ण में काफी अच्छा फायदा जो था वो दिखा था। In 2021, the patient is happy and is in remission phase. At present, she is not having any active disease. हमारा आयुर्वेद का एक और सिद्धांत है पंचमहाभूत सिद्धांत। अगर हम कैंसर में पंचमहाभूत कौन से है ये अगर देखते हैं तो कैंसर ये कठिन और अत्यंत अस्थि धातु होने वाली ये ग्रंथि है जिसमें अस्थि धातु का विमार्ग गमन होता है। और हमने ये देखा हुआ है कि कठिनता ये पृथ्वी धातु, पृथ्वी महाभूत का गुणधर्म है। इसी के साथ तेज महाभूत कैंसर में दिखता है, जो पक्व होने की, किसी भी ग्रंथि का पक्व होने की जो स्थिति उत्पन्न होती है वो तेज यानी कि पित्त से होती है। तो पृथ्वी और तेज महाभूत का कैंसर में आधिक्य होता है। इसी के साथ जो विभाजन कर्म होता है वो वायु से होता है, तो वायु महाभूत की भी इसमें प्रमुख से मुख्यतः उपस्थिति है। तो ये थर्ड केस है, 78 years male patient which came to us with dysphagia of grade 2. 78 ईयर के ये काफी अच्छे से जेंटलमैन थे, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो चुके थे। इनका 2016 में बाईपास सर्जरी हो गया था और उसके 2 साल के पश्चात इनको जो कैंसर डिटेक्ट हुआ था वो थायराइड का कैंसर था। He came to clinic with dysphagia, tiredness, hoarseness of voice, dry cough, stony hard growth of thyroid can be observed around neck. The patient was having these complaints for last 1 year. तो जो हाई रिस्क क्राइटेरिया जो आता है, बाईपास सर्जरी हो गया है, पेशेंट का एज 78 ईयर से काफी ज्यादा है, फिटनेस अच्छा नहीं है, तो इसी कारणवश एलोपैथी के डॉक्टर्स ने इनको ट्रीटमेंट के लिए ना बोल दिया था। ना तो सर्जरी कर सकते हैं और ना ही हम केमो या रेडिएशन कर सकते हैं। तो इस रुग्ण को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमने दिया था। ये रिपोर्ट्स है पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। तो इस रुग्ण का हमने गंडमाला ऐसे निदान किया था। पेशेंट को सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही हमने दिया था। दीपन हेतु रसोनादि वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, संतर्पण हेतु प्रभाकर वटी और श्रृंगारभ्र रस की योजना की थी। This patient was diagnosed as गंडमाला। प्रभाकर वटी और श्रृंगारभ्र रस ये दोनों भी हृदय कल्प है। कार्डियक का रुग्ण का हिस्ट्री था और इस रुग्ण में हमने जो कफ, प्रोडक्टिव कफ जो होता था, तो उसके लिए भी प्रभाकर वटी और श्रृंगारभ्र रस की योजना की थी। दोनों का भी फायदा अच्छा हुआ था। साथ ही में रसायन हेतु हीरक भस्म, सुवर्ण भस्म, मकर ध्वज, अभ्रक भस्म की योजना की थी। व्याधि प्रत्यनिक द्रव्यों के ओर से हमने मांस योग, मेदो योग, कांचनार गुग्गुड़, गंडमाला रस, रौद्र रस, क्रव्याद रस आदि की योजना की हुई थी। हीरक भस्म यह एक रसायन कर्म करने वाली श्रेष्ठ दवाई है। ग्रंथि, अर्बुद, गंडमाला आदि का लेखन हीरक से होता है। सुवर्ण के गुण हमने पिछले ही केस में देखे हुए हैं, उसकी पुनरुक्ति तो मैं नहीं करूंगा। मांस और मेद से घटित ग्रंथियों का विमलापन करने हेतु हमने मांस और मेदोपाचक योजना की थी। यह एक व्याधि प्रत्यनिक दवाइयां है और इसीलिए हमने इसके साथ ही कांचनार गुग्गुड़ और गंडमाला कंडन रस भी यूज किया था।
लिम्फाडेनोपैथी, जब भी कोई भी लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट होती है तो इसमें कांचनार और गंडमाला ये बहुत ही उपयुक्त रसौषधियां है। कैंसर में मेटास्टेसिस होने की शुरुआत नजदीकी लिम्फ नोड से ही होती है और जो दुष्ट हुआ मेद, कफ, रक्त, ग्रविश इन ग्रंथियों में पाया जाता है। साथ में ही चेहरा, हस्तपाद प्रदेश में शोथ उत्पन्न होता है। ऐसे अवस्था में कंचनार समवेत गंडमाला कंडन रस उपयुक्त होता है। इस कल्प में उपस्थित ताम्र भस्म लेखन भी करता है और मंडूर भस्म शोथ नष्ट करता है, पांडु नष्ट होता है और रुग्ण का सातों धातुओं का वर्धन इस दवाइयों से होता है। इस दवाइयों की योजना से होता है, सभी योजनाओं से। रसायन हेतु हमने इस रुग्ण में मकर ध्वज का भी योजना किया हुआ था, मकर ध्वज का भी इस्तेमाल किया था। शरीर में उत्साह, बल, तेज, वर्ण आदि को प्राकृत कराने हेतु मकर ध्वज रस की योजना जो है वो की जाती है। तो इन सब चीजों के इस्तेमाल के लगभग अगर हम 1 महीना बाद देखते हैं तो रुग्ण में काफी अच्छे से रिलीफ मिलना संभव हुआ था। डिस्फेजिया, होर्सनेस ऑफ वॉइस, स्वेलिंग अराउंड नेक आदि सब लक्षण 3 माह में पूर्णतः नष्ट हो गए थे। Patients started walking for 3 kilometers daily as compared to 20 steps before. जो पहले सिर्फ घर में घूमते थे वो अभी आराम से बाहर जाके घूम के आना उनका चालू हो गया था। तो इस रुग्ण का कैंसर जो था वो कुछ हद तक कम हो गया था। इस रुग्ण में 100% तो उपलब्धि नहीं प्राप्त हुई, लेकिन उनके जीवन शैली में सुधार जो था वो काफी अच्छी मात्रा में दिखाई दिया। ये एक 66 इयर्स की लेडी पेशेंट है जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। इनको एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलन डिटेक्ट हुआ था। साथ में ही लीवर में मेटास्टेसिस हो गया था। इनमें केमोथेरेपी के 3 साइकिल भी दिए हुए थे और जब रुग्ण क्लिनिक में आया था तो साथ में उनके पेन इन एब्डोमेन, ब्लड इन स्टूल, फ्लैटस, इंडाइजेशन, टायर्डनेस, डिस्निया, हेपेटोमेगाली, काफी हार्ड ग्रोथ जो था वो राइट हेपेटिक रीजन में दिख रहा था। इंफ्रा हेपेटिक रीजन में लगभग 4 to 5 फिंगर्स की लीवर की ग्रोथ जो थी वो पाल्पेट हो रही थी। लगभग 10 किलो का वेट लॉस भी इस रुग्ण में दिख रहा था। ये रुग्ण के रिपोर्ट्स है। इस रुग्ण में हमने वरांगक्षार, आरोग्यवर्धिनी वटी आदि द्रव्यों की योजना की थी। साथ में ही नवायास लोह, फलत्रिकादि आदि द्रव्य यूज किए थे। पंचामृत परपटी जो के कोलोन ग्रहणी पे काम करने वाला काफी अच्छा कल्प कहा जाता है, उसकी हमने योजना की थी। संजीवनी वटी, बिल्व जैसे द्रव्यों को हमने स्तंभन हेतु यूज किया था। तो इस रुग्ण में जो केमोथेरेपी के 3 साइकिल्स हुए थे और साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में वरांगक्षार जो दिया था, तो उससे इस रुग्ण में लीवर का कैंसर काफी हद तक नियंत्रण में आया था। वरांगक्षार ये चरक संहिता चिकित्सा में वर्णन की हुई एक दवाई है, औषधि है। पंचभौतिक चिकित्सा में वरांगक्षार का बहुत ज्यादा यूज जो है वो किया जाता है। यकृत और प्लीहा के वृद्धि में वरांगक्षार उपयुक्त है। यकृत प्लिन्नो शोणितज, रक्त धातु से यकृत का निर्माण होता है। लीवर के कैंसर में यकृत में काठिन्य, स्थूलता, यकृत वृद्धि यह लक्षणों को नष्ट करने हेतु वरांगक्षार उपयुक्त है। इस रुग्ण में जीर्ण ज्वर, उसके साथ में ही भारक्षय से हुआ मेदक्षय और मेदक्षय में आने वाली प्लीहा वृद्धि, ऐसे सभी क्लासिकल सिम्टम्स दिख रहे थे। ऐसे अवस्था में वरांगक्षार बहुत ही उपयुक्त होता है। यकृत से जो विजातीय द्रव्यों का निस्सरण करके उसे बाहर निकालने हेतु सेंधव जैसे आप महाभूत और आर्द्रता निर्माण करने वाले द्रव्यों की योजना वरांगक्षार में है। विडंग, चित्रक, सुंठी, वेखंड आदि उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का पाचन करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है और इससे यकृत वृद्धि जो है वो कम हो जाती है।
ग्रहणी स्थित पित्त को निर्हरण करने हेतु कामला आदि लक्षणों की उत्पत्ति को रोकने हेतु वरांगाक्षार बहुत ही उपयुक्त होता है। साथ ही में फलत्रिकादि गुग्गुड़ या नवायास लोह ये जो कल्प है ये भी पांचभौतिक परंपरानुसार यकृत और प्लीहा पे कार्य करने वाले हैं। फलत्रिकादि गुग्गुड़ ये वायु और आकाश महाभूत प्रधान कल्प है और इसी गुणों से पृथ्वी महाभूत प्रधान कैंसर में स्थिरता, कठिनता, गुरुता ये कम हो जाती है और ये यकृत के कैंसर को नष्ट करता है। नवायास लोह जो है रक्तवह स्रोतस का मूल स्थान यकृत और प्लीहा है। यकृत में जब कैंसर की संप्राप्ति आती है तो ऐसे में रुग्ण के रक्त धातु का क्षय होता है। इस रुग्ण में हीमोग्लोबिन का काउंट लगभग 8 के करीब आ गया था। ऐसे में यकृत पर कार्य करने हेतु हमने रसरक्त बढ़ाने के लिए रसायन हृदय, उदर और मंदाग्नि ऐसे सभी चीजों पे काम करने वाले इस नवायास लोह कल्प की योजना की थी। नवायास ये शक्तिवर्धक, अग्नि प्रदीपक और पाचक द्रव्य है। दोष दुष्य समूर्छना को नष्ट करने हेतु, धातु साम्य को प्रस्थापित करने हेतु और जीवनीय शक्ति को बढ़ाने हेतु नवायास की योजना की जाती है। तो इस रुग्ण के अगर हम लक्षण देखते हैं तो 1 महीने में काफी सारे लक्षण कम हो गए थे। 2 किलो का वेट गेन भी हो गया था। 3 महीनों के भीतर लगभग सभी चीजें काफी हद तक कम हो गई थी। हेपेटोमेगाली भी 50% तक कम हो गई थी। 4 किलो का भार वृद्धि हो गया था। तो काफी स्ट्रगल करने के बावजूद भी लगभग 1 साल के बाद इस रुग्ण का मृत्यु हो गया था। लेकिन इनके जो आखिरी टाइम था, जो बचा हुआ 1 साल था, वो काफी अच्छे सेहतमंद तरीके से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के वजह से हो गया था। ये मैं यहाँ पे आपको जरूर कहना चाहूंगा। अगर लीवर में कैंसर आता है तो प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता। रुग्ण का 4 से 6 महीनों का ही लाइफ स्पैन जो है विथ और विदाउट ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो ऐसे में 4 से 6 महीने के बदले में लगभग 1 साल की हेल्दी आयु प्रदान करना ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही शक्य हुआ था। हम अगले केस में जाते हैं। ये 31 इयर्स की एक फीमेल रुग्णा थी। इनको लिम्फोप्लाज्मोसाइटिक लिम्फोमा ये कैंसर 2018 में डिटेक्ट हुआ था। शादी होके हार्डली कुछ 4 साल हो गए थे और 4 साल के बाद इनको ये कैंसर पता हो गया। रिकरेंट 1 या 2 बार कुछ एबॉर्शंस हुए थे और एबॉर्शंस के कारण ढूंढने हेतु जब इन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराए थे तो उसके बाद ये कैंसर जो था वो मालूम हो गया था। इस रुग्ण के पूरे शरीर पे इचिंग होता था, जॉइंट्स पे स्वेलिंग होता था और मल्टीपल ट्यूमर्स वेर प्रेजेंट एट जॉइंट्स एंड ऑल ओवर द बॉडी। Patient was having diarrhea with blackish and watery stools. नींद नहीं आती थी, रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन होते थे, होर्सनेस इन वॉइस, आवाज जो था वो बहुत ही घना हो गया था। तो ये सभी लक्षण लेके ये 31 साल की स्त्री रुग्ण हमारे क्लिनिक में आई थी। तो इस रुग्ण ने केमोथेरेपी लगभग 6 से 8 महीनों तक लिया था और केमोथेरेपी लेने के बाद जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस कराए थे तो उसमें कैंसर जैसे कि वैसा ही था। उस केमोथेरेपी का कुछ भी परिणाम दिखा नहीं था। तो इसी हेतु ये रुग्ण हमारे क्लिनिक में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए आए थे। ये रुग्ण के कुछ रिपोर्ट्स हैं। तो इस रुग्ण में हमने सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही दिया था और अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम देखते हैं तो इसमें संजीवनी वटी, महासुदर्शन वटी की हमने योजना की थी। संजीवनी वटी का कार्मुकत्व हमने पिछले केस में देखा था। महासुदर्शन ये एक ज्वर अधिकार का कल्प है। संजीवनी वटी ये गिलोय का कल्प है, गुडुची का कल्प है। गुडुची ज्वरारी इस नाम से भी प्रख्यात है और इस रुग्ण में जो ज्वर हमेशा जो फीवर रहता था, पूरे शरीर में जो दर्द होता था, पॉलीआर्थराल्जिया जैसे जो लक्षण थे,
तो ये ज्वर के ही हेतु स्वरूप जो दिखने वाले लक्षण है वो है। नारदीय लक्ष्मी विलास रस की हमने योजना की थी। सुख साध्य, कृच्छ्र साध्य, याप्य और असाध्य, ऐसे चारों सन्निपातों में लक्ष्मी विलास रस बहुत ही उपयुक्त होता है। पारद गंधक सह ताम्र भस्म, शुद्ध हरताल और सुवर्ण भस्म का परिणाम मस्तिष्क, हृदय, यकृत, आमाशय, ग्रहणी, फुफ्फुस इन अवयवों पर दिखता है। सेंद्रिय विष को शरीर से नष्ट करने हेतु ये लक्ष्मी विलास रस बहुत ही प्रभावी है। रसायन हेतु हमने नाग भस्म यूज किया था। नाग भस्म को कैंसर को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा काम दिखता है, कम करने हेतु बहुत ही अच्छा काम दिखाता है। जो कैंसर की ग्रंथियां होती है वो नाग भस्म के यूज से डिजोल्व होना शुरू हो जाती है। साथ में ही नाग भस्म से धातु पोषण क्रम बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव होता है। धातु अग्नि बहुत अच्छे से बढ़ता है। बल, ओज और भार यानी कि वजन की वृद्धि नाग भस्म से दिखती है। तो पेशेंट के जो फीवर विथ पॉलीआर्थ्रालजिया जैसे जो साइंस थे वो 1 महीने के अंदर ही कम हो गए थे। मल्टीपल ट्यूमर्स ऑन जॉइंट्स जो थे वो काफी हद तक कम हो गए थे। डायरिया, ईचिंग, इंसोम्निया जो था वो काफी हद तक कम हो गया था। पाचन प्रणाली में सुधार लाने हेतु हमने मौक्तिक और प्रवाल भस्म की योजना की थी। शीतवीर्य के ये मौक्तिक और प्रवाल जैसे कल्प दीपन पाचन तो करते ही है, साथ में ही मस्तिष्क पर इसका शामक परिणाम दिखता है और उसी से उनका जो निद्रा नाश था वो अच्छा होके 6 से 7 घंटे की इनको नींद आना शुरू हो गया था। तो इस तरीके के जो ट्यूमर्स थे वो पूरे शरीर पर थे इस रुग्ण के, और ये लगभग 4 से 5 महीनों के भीतर का ही दूसरा फोटो है जिसमें ये ट्यूमर्स पूरे तरीके से डिसॉल्व हो गए हैं। तो रुग्ण जो था वो काफी खुश था और इनका कैंसर जो था, जो हमने पिछले महीने में रिपोर्ट किया है, तो उसमें ये पूरे तरीके से कैंसर शरीर से नष्ट हो गया है। अभी कोई भी कैंसर इनके शरीर में एक सेल भी नहीं है, ऐसा रिपोर्ट कहता है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। शायद मैंने ये रिपोर्ट यहाँ पे लगाया नहीं है, बट आई विल शेयर विथ यू सम। तो स्वभाव परमवाद, आचार्य चरक ने अपने जो सिद्धांत बताए हैं उसमें एक स्वभाव परमवाद ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है। विषम हेतुओं के सेवन से विषम देह धातुओं की उत्पत्ति होती है और समान हेतुओं के सेवन से यह विषम देह धातु नष्ट होके फिर से समान धातुओं की उत्पत्ति होती है। तो अगर कोई मनुष्य हर रोज 10-12 गुटखा की पुड़िया खाता है, तंबाकू का सेवन करता है, 20-25 सिगरेट पीता है, दारू पीता है, अल्कोहल सेवन करता है, तो इन सभी सेवन से उस रुग्ण में अगर कैंसर की उत्पत्ति होती है और फिर उसके बाद में उसने उस हेतुओं का सेवन बंद कर दिया और बाद में जो अच्छे हेतु है जैसे कि दूध पीना है, च्यवनप्राश खाना है आदि अच्छे हेतुओं का सेवन चालू किया, तो क्या इनका दुष्टि से उत्पन्न हुआ जो कैंसर जो था वो फिर से प्राकृत हो सकता है? तो हो सकता है। 2016 में जो मिस्टर योशिनोरी ओसुमी जो है, उन्होंने इसी के अनुसार ऑटोफेजी का नोबेल प्राइज जो था वो मिलाया था, वो उनको प्राप्त हुआ था। तो आप सभी इस डिटेल्स में जा सकते हैं और इसी के अनुसार हमने जो ये केस आगे का है वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये जो 74 इयर्स का रुग्ण हमारे पास आया था, तो इसमें लोअर बैक एक, टिंगलिंग इन बायलैटरल लोअर एक्सट्रीमिटीज ये लक्षण थे। रुग्ण को लगभग 20 से 25 बार तक यूरिन होता था दिन भर में और जो कि अनकंट्रोलेबल था। रात में भी 4-4, 5-5 बार उठना पड़ता था। पेशेंट वाज अनेबल टू वॉक विदाउट सपोर्ट। उनको खड़ा रहना, उठना, चलना तो बहुत ही दूर था, विदाउट सपोर्ट बिल्कुल ही होता नहीं था। इस रुग्ण में लगभग 20 किलो का भार क्षय हुआ था और जब
रुग्ण ये हमारे क्लिनिक में आया था तो उस वक्त उनका भार 76 किलो था। उससे पहले उनका लगभग 95 तक का वेट था। ये रुग्ण प्रोस्टेट कैंसर ऑफ स्टेज 4 ग्रेड 3 ये डायग्नोसिस लेके ही हमारे क्लिनिक पे जब आया था। उसी के साथ उनके एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स में और होल स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन में और स्पाइन में कैंसर का मेटास्टासिस हुआ था। इस रुग्ण का ये बोन स्कैन का रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि abnormal heterogeneous increased tracer of concentration is seen in skeleton at entire spine, bilateral ribs, sternum, scapulae, bilateral pelvic bones, bilateral appendicular skeleton in both humeri and femori। तो शरीर का एक भी हड्डी ऐसा छूटा हुआ नहीं था कि जिसमें कैंसर फैला नहीं है। ऑल ओवर द बॉडी ये मेटास्टासिस था। इस रुग्ण में हमने आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्रप्रभा वटी आदि द्रव्यों की योजना की थी। चंद्रप्रभा, शिलाजीत, स्वर्णवंग ये जो कल्प है ये प्रोस्टेट के कैंसर के लिए बहुत ही बढ़िया कार्य करते हैं। शिलाजीत जैसे जो कल्प है, गुग्गुल जैसे जो कल्प है, इनका चरक संहिता में रसायन हेतु उपयोग आया हुआ है और रसायन हेतु उपयोग में चरकाचार्य ऐसे कहते हैं कि ऐसा एक भी व्याधि नहीं है या सन्निपात नहीं है जो शिलाजतु और गुग्गुल के सेवन से नष्ट नहीं होगा। अगर हम चंद्रप्रभावटी के इसके डिटेल्स देखते हैं तो इसमें भी गुग्गुल और शिलाजित ऐसे दोनों भी कल्पों की योजना की हुई है। चंद्रप्रभा के मूत्रेंद्रिय और शुक्रार्कों पर जो परिणाम दिखता है, साथ में ही धातु परिपोषण का जो कार्य उसका इंप्रूवमेंट करने हेतु चंद्रप्रभा काफी अच्छा काम करते हैं। इस रुग्ण में 25 साल से डायबिटीज मेलिटस की हिस्ट्री थी। जब डायबिटीज होता है काफी लंबा टाइम तक होता है तो मूत्रेंद्रिय में क्षोभ उत्पन्न होता है, उसमें दाह इत्यादि विकार उत्पन्न होते हैं। और चंद्रप्रभा जो कि मूत्रल कहा जाता है, लेकिन इस मूत्रल चंद्रप्रभा के इस्तेमाल से बस्ती को बल मिलता है और उनकी सम्यक मूत्र प्रवृत्ति होना चालू होता है। तो नंबर ऑफ जो 20 से 25 बार मूत्र प्रवृत्ति होती थी वो कम होके लगभग 8 से 10 तक आ गई थी। इसी रुग्ण में हमने एकेरी स्वर्ण वंग का भी यूज किया था। वंग भस्म पारागंधक का यह एक कुपीपक्व कल्प स्वर्ण वंग है। चंद्रप्रभा संवेद जब हम स्वर्ण वंग का यूज करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कार्य दिखाता है। बहुमूत्रता, शरीर में अत्यधिक क्लेद की उत्पत्ति को कम कराने हेतु, शरीर का संगठन बढ़ाने हेतु इसकी उपाय योजना की जाती है। मूत्र प्रवृत्ति समय दुर्गंध आना, कोथ होना, सरक्त मूत्र प्रवृत्ति ये लक्षण जो दिखते हैं, मूत्र मार्ग में जो शोथ, व्रण और पुयोत्पत्ति के लक्षण दिखते हैं, इसमें स्वर्ण वंग का यूज काफी अच्छा होता है। धातु परिपोषण को सुधार करके शरीर का संगठन और बल बढ़ाने हेतु स्वर्ण वंग का काफी अच्छा यूज होता है। तो शिलाजतु, स्वर्णवंग और चंद्रप्रभा ये जो संयोग है ये एक दूसरों के गुणों के साथ मिलके परस्पर मिलन की गुणवृद्धि दर्शाते हैं और कैंसर जैसी असाध्य संप्राप्तियों को भंग करने हेतु तो इस रुग्ण के ये जो रिपोर्ट्स है इसमें हम देख सकते हैं कि सीरम पीएसए जो एक कैंसर का प्रोस्टेट कैंसर का मार्कर है वो 1000 तक बढ़ गया था दिसंबर 2019 में। फिर ट्रीटमेंट चालू करने के कुछ 3 माह के पश्चात ये 81.4 तक आ गया था और जो हमने नवंबर 2020 में इस रुग्ण का रिपोर्ट किया है इसमें ये पूरी तरीके से नॉर्मल होके 1.09 तक आ गया है। तो सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इनका जो सीरम पीएसए का वैल्यू था वो काफी हद तक कम हो गया है। इस रुग्ण का जो बोन स्कैन का रिपोर्ट है ये हमने अभी मार्च में प्लान किया है।
तो ये रिपोर्ट में भी मैं जैसे ही होता है वो आप सभी के साथ शेयर भी कर दूंगा। ये एक 7वां केस है, हमारा आज का लास्ट केस है। तो ये जो रुग्ण था, इसके लेफ्ट साइड के आंखों से खून बहता था, बहुत ही ज्यादा हेडेक होता था, उनको स्टैमरिंग स्पीच का भी तकलीफ था, चक्कर आता था। ये लिम्फोएंजियोमा का एक रुग्ण था। तो इस रुग्ण के लेफ्ट आईबॉल के पीछे का लिम्फ नोड और उसी के साथ का ब्लड वेसल, इसमें ये ट्यूमर की उत्पत्ति हुई थी। ये एक बेनाइन ट्यूमर है, लेकिन ब्रेन से और आंख के करीब होने के कारण इसका ट्रीटमेंट जो था वो काफी मुश्किल था। तो ये रुग्ण आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराने हेतु हमारे पास आया था। तो ये आप देख सकते हैं, वहां पे एक्टिव ब्लीडर्स जो है वो भी देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सिर दर्द, स्टैमरिंग स्पीच। इसके उम्र के बाकी के लड़के गाड़ी वगैरह चलाते थे, स्विमिंग करने जाते थे, लेकिन ये 17 साल का लड़का था और ये सभी चीज इसको करने में बहुत ही परेशानी होती थी। इस रुग्ण में हमने प्रवाल पंचामृत, कामदूधा, सुवर्णयुक्त ब्राह्मी वटी, ब्राह्मी घृत, रक्तपित्त कुलकंडन रस, गंडमाला रस, कांचनार, व्याधिहरण, इन जैसे द्रव्यों की योजना की थी। ट्रीटमेंट के लगभग 1 माह के पश्चात ही उसका खून से ब्लड आना काफी हद तक बंद हो गया था। सिर दर्द में 50% तक कमी हो गई थी और 3 महीनों में लगभग 80% तक सिर दर्द कम हो गया था। स्टैमरिंग स्पीच भी काफी हद तक आराम आ गया था। तो चिकित्सा के पश्चात और चिकित्सा के पूर्व ये 2 फोटोज हैं। तो सिर्फ आयुर्वेदिक तरीके से ये जो लिम्फोएंजियोमा था, ये काफी हद तक कम हो गया। अभी इस रुग्ण को कार, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, स्विमिंग, रॉक क्लाइंबिंग आदि सब चीजें करने में बहुत ही आसानी होती है, कहीं पे भी कोई भी तकलीफ नहीं होता। तो इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का फायदा कैंसर के रुग्णों में काफी हद तक और काफी अच्छा होता है। हम कैंसर को क्यूरेटिव, पैलिएटिव, प्रोफाइलैक्सिस, सपोर्टिव, इन सभी तरीकों से यूज कर सकते हैं। सो cure, complete remission of cancer, partial response, stable disease, disease-free survival, and increase in survival time. All these things can be achieved with Ayurvedic treatment. So I would like to conclude my today's session. Our basically the conclusion is Ayurveda treatment protects healthy cells, it regulates body metabolism and treats the disease. And the treatment should always be focused on Tattva, Shastra, and importantly, Ayurvedic Siddhanta. The Ayurvedic diagnosis of patient, holistic approach of the treatment, psychological counseling, and basics of Ayurveda should be always remembered while treating these cancer patients. So, what Ayurveda can do? Ayurveda can extend life by adding years and can add life to these extended years. कैंसर को पूरे दुनिया से हद-पार करके इस दुनिया को बेहतर बनाना, ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है। We are Swayu Cancer Care Center. I would like to thank Dr. Shishir Partane for helping me to prepare this today's slide. Take home message for all of you is that yes, one can fight cancer. I can fight cancer, but let's fight cancer together. All of you friends are important in this battle against cancer. Do follow us on Facebook, Instagram, and Twitter. If any queries are there, I can answer it. Also, this is my phone number. If you are having any doubts, you can also give me a call. Well, thank you. Thank you very much. Back to you.
Hello. Thank you, sir. Thank you for your precious time and presence. Cancer is a sure life-threatening disorder, as we all know, and knowing its Ayurvedic aspect was a boon for all of us. To each and every participant present here, thank you for your valuable time. Tomorrow there will be a similar session conducted by Dr. Rishikesh Nagvekar, who will be speaking about surgical arthritis for rectal bleeding from 1:45 to 2:45 p.m. and Dr. Sudarshan Pandey, sir, who will be speaking about COVID from 3 to 4 p.m. Thank you so much. Thank you so much again, Kalankar, sir. And thank you for today's presence. We'll hope to see you